Today in this practical section, I will tell you about a simple program. Here you can see that in this screen uh, there is a function, that is main function. In main function there is a line of instruction, that is cout hello world. So it will print the message, that is hello world. When I run this program, build and run, then this will show you the output, that is hello world. अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो. तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि दिस इज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट द फर्स्ट सेक्शन इज डॉक्यूमेंट सेक्शन, which means that we can use single line command or we can use multiple line commands. If you want to use single line command, then you can use double slash, and here you can write that this is a program for addition of two number. So why I am writing this command? Because when I will show this program to some other person, that he will read this comment section and he will come to know about that this is a program for the addition of the two number. So it improves understandability of the program. Clear? Okay, after that there is a section, that is directive section. So you can see that this is include IOStream. So this is a directive section, which I have already discussed, that why we are including the header file IOStream, because in this header file there are predefined function and there are some other function which is needed by the programmer. Suppose you want to take input from the user or you want to display some message on the screen, then in that case you have to use cin or cout. So cin cout is defined in this header file, that is iostream.h in Turbo C++, but in code block there is no need of .h, that you can simply write IOStream. So this is a directive section. After that there is a line that is using namespace std. Std is a namespace name, that is std. After that this is a main function. I am using command here so that you can able to understand what is this main function. I have already discussed that what is a main function in C++ structure program. It is a function which is called after after running of the program. When you run the program, this function is called. So this is a main function. Before that there is a global section, there is a class section also. So I am not using that. So here I am taking a two variable, that is int x, int x y एंड z. तो मैंने यहाँ पर क्या किया, तीन वेरिएबल लिए. यहाँ पर आप x की कोई वैल्यू दे सकते हो 4. तो ये सिंपल प्रोग्राम है एडिशन का, जैसे int x y z है. तो यहाँ पर क्या किया मैंने, तीन वेरिएबल लिए x y z. तो x की वैल्यू कितनी है 4 है, y की वैल्यू कितनी है 2 है. अब आप चाहते हो कि इसका सम प्रिंट हो, तो आप क्या करोगे, सी आउट, जो भी आप मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो, जैसे मैंने ये मैसेज डिस्प्ले किया हुआ, तो ये क्या होंगे आपके डबल कोटेशन के अंदर ही होंगे, सिंगल कोटेशन के अंदर नहीं होंगे ये आपके. तो आपने क्या किया, तीन वेरिएबल लिया, इंट एक्स वाई जेड. ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है 4 होगी, वाई की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, और जेड की वैल्यू क्या है, ये भी जो जेड है ये किस टाइप का है, ये भी इंटीजर टाइप का है. तो इट मींस 4 + 2 कितना हो गया 6. तो जेड की वैल्यू कितनी होगी 6. फिर आपने क्या किया, एक मैसेज प्रिंट किया, दैट सी आउट सम इक्वल टू जेड. तो देखो अगर मैं यहाँ डबल कोटेशन यूज करता हूं, तो उस केस में फिर वो जेड शो करेगा, लेकिन हमें जेड नहीं शो करना, हमें जेड की वैल्यू शो करना है. तो इसलिए हम इसको विदाउट डबल कोटेशन के अंदर करेंगे हम, जैसे सिंपली जेड, दिस इज विद इन डबल कोटेशन.
तो अब देखते हैं इसमें क्या, पहले तो कंपाइल करना है, चेक करना है आपने। तो यहाँ पर देखो, यू कैन सी दैट द आउटपुट इज सम इक्वल टू 6। कैन यू सी दिस आउटपुट? यस सर। Yes, sir. तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो इंट है ये क्या है, इंटीजर टाइप का एक डाटा टाइप है। आप चाहे तो यहाँ फ्लोट टाइप का भी ले सकते हो, डाटा टाइप आपका अलग अलग है। जैसे एक फ्लोट भी हो गया आपके पास, तो 4.2 तो अब एक्स वाई जेड किस टाइप के हो गए, फ्लोट टाइप के हो गए। तो अब आप इसको भी रन करके देख सकते हैं। तो यहां पर कितना आ रहा है, 6.4। ठीक है, Yes, sir. अगर यहां पर हम ऐसे करें इंट और यही रहने देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको रन करके देखें, तो आउटपुट क्या आ रही है आपके पास, 6। आप देख पा रहे हैं आउटपुट क्या आ रही है, 6 आ रही है। Yes, यस sir. सर। ये डेसिमल पॉइंट को नहीं ले रहा है। आपने क्या किया, 4.2 दे दिया, और डाटा टाइप कौन सा यूज किया आपने, इंट। पर इंटीजर तो पॉइंट को लेता ही नहीं है, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही लेगा, या तो 4 या तो 5 या तो 6, लेकिन 6.5 नहीं लेगा। एक्चुअल में इसका आउटपुट क्या आना था, 6.4, पर आउटपुट क्या आई, 6। तो ये डेसिमल पॉइंट वाला जो पोर्शन है दैट इज 6.4, तो वो 0.4 वैल्यू नहीं शो करेगा, इट विल शो ओनली दी इंटीजर पार्ट दैट इज 6। तो इसलिए डाटा टाइप का यहाँ पर रोल बहुत मायने रखता है। आपको सही डाटा टाइप यूज करना है। जैसे मान लो आप कभी यूज करते हो तो एज, अगर आपको पता है एज, कभी आपने ऐसे सुना है 21.5, नहीं, या तो 21 ईयर्स ओल्ड होगा या तो 20 ईयर्स ओल्ड होगा। ठीक है, 21.5 नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, इंटीजर यूज करोगे डाटा टाइप। अगर आपको क्या करना है, मोबाइल किसी का नंबर लेना है, मोबाइल नंबर लेना है ऑनलाइन करके, तो आपने वहां पर उस केस में मोबाइल का डाटा टाइप क्या लोगे आप, इंटीजर टाइप यानी इंट लोगे। अगर किसी के मार्क्स की बात हो रही है तो हाँ, मार्क्स में क्या होता है 4.5 यानी 4.5, तो आप क्या लोगे वहां पर, फ्लोट मार्क्स। तो मैंने एंटर किया यहाँ पर marks equal to 4.5, then the marks variable should be of float type. Otherwise you are entering age or otherwise you are entering the mobile number, then there is no need of any float data type. int x y, यही एक वेरिएबल लिया था बाहर, और एक मैंने लिया था फंक्शन int sum। तो एक मैंने फंक्शन यहां पर बनाया था क्लास int sum नाम का, Class. सम नाम का एक फंक्शन बनाया था, याद है आपको। यहां पर मैंने क्या किया था, रिटर्न x प्लस वाई, यही किया था ना। Yes, sir. मान लो यहां पर मैंने क्या किया, इंट z, z इक्वल टू x प्लस वाई, फिर मैंने क्या किया, रिटर्न z। तो ये क्या है, एक सम नाम का एक फंक्शन है, हम इसको यहां पर कॉल भी कर सकते हो। तो किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल फंक्शन का नाम यूज करते हैं। तो मैंने मेन फंक्शन में क्या किया, सम को डिफाइन किया, सम को फंक्शन को कॉल करेगा, ये वाला सम नाम का जो एक फंक्शन है इसको कॉल करेगा। इसमें क्या किया हुआ है, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। लेकिन जब भी आप कहीं भी यूज करते हो फंक्शन नेम, तो उसको पहले हमेशा ऊपर डिक्लेयर करना पड़ता है। तो दिस इज ए व्हाट, दिस इज ए सब फंक्शन। तो पहले मैंने क्या किया था, वॉइड मेन के अंदर ही एडिशन करके दिखाया। अब आप क्या कर सकते हो, सब फंक्शन के थ्रू भी आप प्रोग्राम को ऐड करके उसकी वैल्यू को शो कर सकते हो। आफ्टर एडिंग 2 नंबर यू कैन शो द सम ऑफ दैट 2 नंबर। अगर आप यहाँ रिटर्न कर रहे हो तो इट मींस देयर शुड बी सम वैल्यू यहाँ पर जो इसको लेगा। जैसे सपोज करो यहाँ पर मैंने लिया इंट s इक्वल टू सम, तो जो ये s है
ये क्या करेगा, सम नाम के एक फंक्शन को कॉल करेगा। अब ये जो सम नाम का फंक्शन है ये भी इंटीजर टाइप का है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है इंट जेड, ये किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई। तो अगर एक्स और वाई की वैल्यू हो गई 5 + 5, तो वो कितना हो गया 10। अब ये क्या कर रहा है, रिटर्न 10 कर रहा है। तो ये किसको रिटर्न करेगा वैल्यू, एस को, क्योंकि एस ने ही इसको कॉल किया। तो यानी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 10। लेकिन मैंने उस वक्त एस नहीं लिया था, तो हम यहाँ भी एस नहीं लेंगे। यहाँ पर हम सिंपल फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर भी हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे, दैट इज सी आउट सम सम इक्वल टू जेड। उसके बाद हमने एक क्लास भी बनाया था यहाँ पर। यू कैन दिस सेक्शन इज विच टाइप ऑफ सेक्शन, दैट इज ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। उसके बाद हमने क्या किया था, क्लास सेक्शन बनाया था। तो मैंने क्या किया था, क्लास ABC ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करते हो, यहाँ पर क्या आता है, सेमीकोलन आता है। ये सिंटैक्स है कि क्लास हमेशा टर्मिनेट होगा लास्ट में सेमीकोलन से। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया था, पब्लिक void इनपुट। तो यहाँ हमने void मेन फंक्शन के अंदर क्या लिया था, चेन x y। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंटर एनी 2 नंबर। फिर मेन फंक्शन में आपको क्या करना पड़ता है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ABC A। तो हमने वहां पर कैपिटल A लिया था वहां पर। फिर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को एक्सेस करते हैं। कौन से फंक्शन को, क्लास के अंदर जो डिफाइंड है, इनपुट। सेमीकोलन आपको लगाना पड़ता है। दिस मीन्स इट विल टर्मिनेट दिस स्टेटमेंट। अब यहां पर हम बिल्ड करके देखते हैं। तो यहां देखो एरर बता रहा है ये, अब ये बोल रहा है एंटर एनी 2 नंबर। मैंने यहां पर एंटर किया 2 3, सम कितना आया 5। तो देखो वही मेन के बाहर यहां पर डिफाइन किया। तो दिस इज फंक्शन नेम, दैट इज फंक्शन डेफिनेशन, एंड दिस इज फंक्शन बॉडी। तो ये फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन बॉडी, फंक्शन डिक्लेरेशन, ये क्या चीज है, ये जब 3rd चैप्टर या 4th चैप्टर में आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि दिस इज ए फंक्शन डिक्लेरेशन, दिस इज ए फंक्शन डेफिनेशन, एंड दिस इज ए फंक्शन बॉडी। अभी आप ये देखो कि दिस इज ए फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन मीन्स फंक्शन डिक्लेरेशन प्लस फंक्शन बॉडी। तो दिस इज ए फंक्शन डिक्लेरेशन मीन्स द फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर का मतलब होता है उसमें क्या होगा, एक तो रिटर्न टाइप स्पेसिफाई होगा कि वो किस टाइप का रिटर्न वैल्यू को रिटर्न करेगा, दूसरा फंक्शन का नाम क्या होगा, और तीसरा फंक्शन की बॉडी क्या होगी। तो ये फंक्शन की बॉडी में मैंने इंस्ट्रक्शन डिफाइंड किया। ये जो मैंने बनाया आपको क्लास ABC, दिस इज ए क्लास सेक्शन। So I hope you have now got idea what is I am talking about, the different section in the structure of C++ program. There I have discussed about
this documentation which is a comment section. अगर आप डॉक्यूमेंट सेक्शन की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, मल्टीपल लाइन एंड सिंगल लाइन. सिंगल लाइन के लिए हम क्या करते हैं, डबल स्लैश. फॉर मल्टीपल लाइन स्लैश स्टार एंड देन स्टार स्लैश. उसके बाद मैंने क्या यूज किया, डायरेक्टिव सेक्शन. डायरेक्टिव सेक्शन आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे डिफाइन भी होता है, आप वहां पर मैक्रो डिफाइन कर सकते हैं. दूसरा डायरेक्टिव सेक्शन जो आपके बेसिक होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए बेसिक फर्स्ट ईयर में, वो ये है कि इंक्लूड. इंक्लूड इज अ डायरेक्टिव section which include the header file like iostream and there are many other header file. Turbo C++ में क्या था, clear function था, catch function था, वो conio.h header file में था. तो यहाँ पर conio.h की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, header file इंक्लूड कर रहे हैं iostream का. उसके बाद हमने क्या किया, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, जहां पर हमने वेरिएबल को क्या किया, ग्लोबली डिक्लेयर किया, सो दैट इट इज एक्सेसिबल इन एवरी पार्ट. यहाँ भी देखो क्लास के अंदर भी एक्सेस कर पा रहे हैं हम, क्योंकि हमने ग्लोबली डिक्लेयर किया, बाहर डिक्लेयर किया, और यहाँ भी वो एक्सेस कर पा रहे हैं. उसके बाद हमने क्या किया, क्लास सेक्शन, क्लास को मैंने यहाँ डिफाइन किया एबीसी नाम के. उसके अंदर एक मैंने क्या किया, फंक्शन बनाया, मेंबर फंक्शन बनाया. उस मेंबर फंक्शन का नाम क्या है, वॉइड इनपुट. अगर हम इसको पब्लिक की जगह प्राइवेट करते हैं और उसको हम रन करके देखें तो देखो एरर क्या आ रहा है यहां पर. कैन यू सी दिस एरर, इट इज ए प्राइवेट. तो इसका मतलब प्राइवेट का मतलब क्या, इट इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास. आउटसाइड द क्लास यू कैन नॉट एक्सेस दिस member function because it is a private. So that's why in C++ data and function are secure. So there is a security in object oriented programming language. So C++ is a object oriented programming language. So now I am declaring public so that this function can be accessed by the object of this class. तो मैंने ऑब्जेक्ट क्या बनाया, A. वो ऑब्जेक्ट किसका, इसी क्लास का, ABC का. तो इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इस इनपुट फंक्शन को जो कि मेंबर फंक्शन है किसका, क्लास का, उसको एक्सेस किया बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर. और ये जो सम है ये तो मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ यहाँ पर ग्लोबल सेक्शन में कि इट इज ए ग्लोबल फंक्शन, सो इट इज एक्सेसिबल एवरीवेयर. तो मैंने क्या किया, ये सम नाम के फंक्शन को कॉल किया void main फंक्शन में. उसके बाद ये फंक्शन कॉल हुआ, इस फंक्शन को यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया z नाम का, और ये जो वैल्यू है x और y, ये तो हमने यूजर से इनपुट करा लिया था रन टाइम पर. वैल्यू क्या एंटर करवाई थी, एक तो हमने 2 और 3. तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, 2 + 3 कितना हो गया, 5, और वो z में स्टोर होगा. और यहाँ पर मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले किया. सो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम इन C++. सो आई होप यू हैव नाउ अंडरस्टूड. तो यहाँ पर देखो ये जो मैंने int z लिया है, दिस इज व्हाट, दिस इज declaring a variable. I am declaring a variable. ठीक है. अब आप देखो मैट्रिक्स का, आपने मैथमेटिकल में सब्जेक्ट में क्या करते थे, आप पेन से वहां पर दो मैट्रिक्स को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, यही करते थे ना, फैक्टोरियल निकालते थे. दैट इज बाय यूजिंग पेन. You can make a program here and it will give you output. Factorial of 5 कितना आएगा, 120. Only thing is that you have to make a logic. उसके बाद आप देखो मैट्रिक्स का यहाँ पर प्रोग्राम हम बनाएंगे आगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रोग्राम बनाना. बस ये है कि इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, कैसे क्या क्या करना है. एक बार वो चीज आपको पता लग जाए ना, कौन सी चीज कहाँ पर रखनी है, कहाँ नहीं रखनी है, फिर आपको प्रोग्राम बनाना बहुत आसान हो जाएगा. सो इट इज वेरी सिंपल. द ओनली थिंग यू नीड इज प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस. तो ये तभी पॉसिबल है अगर आप बुक खोलेंगे, है ना, उसको देखेंगे प्रोग्राम कैसे बना, उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, प्रोग्राम बनाओगे, आप एग्जीक्यूट करोगे, बार बार एरर आएगा, उस एरर को आपने सॉर्ट आउट करना. खुद नहीं पता लगता तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब आप बार बार खुद करोगे तभी आपको लॉजिक डेवलप करना आएगा. अदरवाइज इट इज नॉट वेरी इजी टू मेक अ प्रोग्राम. This is a simple program, you can make it, but for in very big project it is not easy to make a
program there. So you have to do first practice. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So I hope Yes, now sir. you all have understood the concept of the structure of the C++ program, how those various section can be used in this program. पहले मैंने क्या किया, सिंपल प्रोग्राम बनाया था एडिशन का. देयर इज नो नीड ऑफ क्लास सेक्शन, देयर इज नो नीड ऑफ ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, बट आई हैव यूज्ड ऑल द सेक्शन. तो इसका मतलब प्रोग्रामिंग में आप चाहे तो छोटा भी प्रोग्राम बना सकते हो, और अगर प्रोग्रामिंग में चाहे उसी प्रोग्राम को आप बड़ा करके भी बना सकते हो. तो देखो मैंने ये बड़ा करके बनाया. पहले क्या होगा, सम नाम का एक फंक्शन है, उसको कॉल करेंगे, फिर वो रिटर्न करेगा इन एग्जीक्यूशन. Whereas if I do the programming in word main function by using z equal to x plus y, then it will simply execute that particular 3 line of coding. वो 3 लाइन की कोडिंग, और ये देखो 10 लाइन की कोडिंग में 35 लाइन की कोडिंग है, तो फर्क पड़ रहा है ना. एग्जीक्यूशन टाइम तो ज्यादा लेगा इसमें. तो एज ए प्रोग्रामर यू हैव टू मेक श्योर दैट इट टेक्स लेस टाइम, कम से कम टाइम ले. ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच.